بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے فقہیات اور کچھ اہم مسائل بیان کروں گا. صدقہ فطر سے مراد رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے نکالا جانے والا فطرہ اور صدقہ ہے. اس کو صدقہ بھی کہتے ہیں اور فطرہ بھی کہتے ہیں. حکمت: یہ روزے داروں کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے ہے. روزے کی حالت میں اگر آدمی سے دانستہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ اس کو معاف کر دے گا اور کفارہ ہو جائے گا، اور یہ مسکینوں کے لیے کھانا بھی ہے. مقدار: ایک سا. سائے حجازی تقریباً 2.5 کلو سے 3 کلو تک ہوتا ہے. ناپی جانے والی چیز کے ہلکے یا وزنی ہونے سے وزن میں فرق پڑے گا، لیکن 2.5 سے 3 کلو مان کے تو چلنا ہی چاہیے. اور سائے حجاجی مطلوب نہیں ہے، یعنی سائے عراقی جسے حجاج بن یوسف نے جاری کیا تھا وہ نہیں. کس کی طرف سے نکالا جائے؟ مرد، عورت، چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام. اس کے نکالنے کا وقت عید سے پہلے 2-3 دن، عید سے پہلے نکالیں گے اور عید سے 2-3 دن پہلے تک نکال سکتے ہیں. عید کی نماز کے لیے جانے سے قبل نکال کر مستحقین کے ہاتھ میں تھما دینا اور دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات میں استعمال کریں. اگر نماز عید کے بعد اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو صدقہ کا ثواب ملے گا، پر صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا. صدقہ فطر کے حقدار صرف مسلمان ہیں، مسلمانوں ہی کو دیا جائے گا، اور اس کی ادائیگی صرف مسلمانوں کی طرف سے کی جائے گی. غیر مسلم کی طرف سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا. نبی اکرم نے جتنا نکالنے کا حکم دیا ہے اور جس مقدار میں صحابہ نکالتے تھے اتنا ہی نکالیں گے، نہ اس میں کمی کریں گے اور نہ زیادتی، اور قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے قیاس بھی نہیں کریں گے. حضرت معاویہ نے آدھا سا گیہوں کر دیا تھا، پر صحابہ نے اسے قبول نہیں کیا تھا. صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے. اگر 1 دن 1 رات سے زیادہ کی خوراک ہے اور جتنا صدقہ فطر آدمی پر آ رہا ہے اتنی مقدار نکالی جا سکتی ہے تو ایسا آدمی صدقہ فطر کی ادائیگی کرے گا. اور اگر 1 دن 1 رات سے زیادہ مقدار میں کھانے پینے کی چیز نہیں ہے تو اس پر صدقۃ الفطر نہیں ہے. اس بابت شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، صدقہ فطر کی فرضیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو، بلکہ جس طرح ایک دولت مند پر فرض ہے اسی طرح اس غریب پر بھی فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اپنے اور اپنے اہل و عیال کی خوراک سے زائد اس قدر موجود ہو کہ ہر ایک کی طرف سے 1 سا غلہ دے سکے، بلکہ غربا کو دوسروں کے دیے ہوئے غلہ سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. جس علاقے میں جو چیز کھائی جاتی ہے اور وہی لوگوں کی عام غذا ہے تو اس میں سے 1 سا نکالیں گے. یہاں تک کہ جن لوگوں کی غذا عام طور سے گوشت ہے یا مچھلی ہے اور یہی
साल के अक्सर दिनों में खाते हैं तो इसी का फितरा और इसी का सदका निकालेंगे। सदक़तुल फित्र सा से निकालना अफदल है। अगर सा या मुद शरई मिल जाए तो उसी से नाप कर सदक़तुल फित्र निकालना अफदल है, क्योंकि हदीस में सा से नापने का तज़किरा है और असल वही है। और किलो वगैरह से वज़न करके देना भी जायज़ है, इस वास्ते कि अक्सर मकामात पर सा और मुद नहीं मिलते और लोग किलो से वज़न करके निकालने पर मजबूर हैं। क्या सदक़तुल फित्र के वजूब के लिए निसाब ज़कात का मालिक होना शर्त है या अमीर व गरीब हर एक पर सदक़तुल फित्र वाजिब है? कहते हैं कि सदक़तुल फित्र के वजूब के लिए किसी भी हदीस में निसाब ज़कात के मालिक होने की शर्त वारिद नहीं है, बल्कि बहुत से दलाइल से मालूम होता है कि ये अमीर व गरीब हर एक पर वाजिब है। जैसे एक हदीस में है कि इब्न उमर फरमाते हैं, फरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री मिन रमज़ान साअम मिन तमरिन और साअम मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वज़्ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र हर आज़ाद व गुलाम, मर्द व औरत और छोटे बड़े मुसलमान पर एक सा खजूर या एक सा जौ फर्ज किया है। और मुसलमान के उमूम में साहिब निसाब भी दाखिल है और वो गरीब मुसलमान भी जो साहिब निसाब नहीं है, मगर इसके पास इसके और इसके बाल बच्चों के एक दिन के खाने से इतना जायद है कि वो सदक़तुल फित्र अदा कर सकता है। अलबत्ता अगर उसके पास इतना भी नहीं तो उस पर सदक़तुल फित्र वाजिब नहीं, क्योंकि अगर उसके पास सिर्फ एक दिन के खाने का इंतज़ाम है और वो उसे भी सदक़तुल फित्र में निकाल दे तो खुद दूसरों का मुहताज और दस्ते निगर हो जाएगा। दूसरे सदक़तुल फित्र बदन का सदका है, इस वास्ते इसको माल की ज़कात पर क़यास करना सही नहीं है। तीसरे हदीस में तोहरा लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़ वारिद है, और यानी रोज़ादार के लिए रोज़ा की हालत में सादिर होने वाली लग़्व और फहश बातों के कफ़ारा और पाकी व सफाई के लिए है। जाहिर है कि ये साहिब निसाब यानी गनी और निसाब से महरूम गरीब सबको शामिल है, क्योंकि सबसे इस तरह की बातें रोज़ा की हालत में सादिर होती हैं और सबको उसके कफ़ारा और ततहीर की ज़रूरत होती है। चौथे हदीस में गुलाम का भी जिक्र है और गुलाम का माल उसके सईद का माल होता है, इस वास्ते वो निसाब का मालिक हो ही नहीं सकता, फिर भी इस पर सदक़तुल फित्र वाजिब है। इसी तरह हदीस में छोटे बच्चों का भी जिक्र है और छोटे बच्चे भी उमूमन निसाब के मालिक नहीं होते। इन दलाइल से मालूम हुआ कि सदक़तुल फित्र के वजूब के लिए निसाब ज़कात के मालिक होने की शर्त नहीं है। क्या यतीम बच्चे पर सदक़तुल फित्र वाजिब है? कहते हैं हाँ, यतीम बच्चे पर सदक़तुल फित्र वाजिब है, क्योंकि अस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन के उमूम में यतीम भी दाखिल है और इसकी जानिब से इसका वली और सरपरस्त उसके माल से सदक़तुल फित्र अदा करेगा। यहाँ पर सवाल है, कहते हैं हदीस में सदक़तुल फित्र के बारे में
तोहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़थ वारिद है। इससे तो मालूम होता है कि यतीम और नाबालिग बच्चे जो रोजे नहीं रखते उन पर सदक़तुल फित्र फर्द नहीं है। आपकी क्या राय है? जवाब में कहते हैं हजरत इब्ने उमर की हदीस में सराहत है, अस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन, छोटे और बड़े हर मुसलमान पर फर्द है। इस नस्से सरीह के होते हुए तोहरतल लिस्साइम के मफ़हूम मुखालिफ से इस्तिदलाल सही नहीं, मंतूक मफ़हूम पर मुक़द्दम होता है। और हक़ यही है कि नाबालिग बच्चों पर भी सदक़तुल फित्र वाजिब है और उनके पास माल है तो उससे सदक़तुल फित्र अदा किया जाएगा, वरना जो उसके नानो नफ़क़ा का जिम्मेदार होगा वो अदा करेगा। हदीस में सदक़तुल फित्र की 2 हिकमतें बताई गई हैं। नंबर 1, रोजेदार की लग़्व और फहश बातों से तत्हीर और सफाई। नंबर 2, मसाकीन के लिए खाने का इंतज़ाम करना। यहाँ अगर एक हिकमत यानी रोज़े की तत्हीर नहीं है तो दूसरी हिकमत यानी मसाकीन के लिए खाने का इंतज़ाम तो पाया जाता है। नीस तोहरतन लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़थ अक्सर लोगों का लिहाज करते हुए कहा गया है, अक्सरियत का एतबार किया गया है। इसका मकसद हरगिज छोटों से सदक़तुल फित्र को साक़ित करना नहीं है। इसमें मंतूक और मफ़हूम आया है। मंतूक जो साफ अंदाज में हदीस आई है, मंतूक बोला हुआ, मफ़हूम जो समझा गया है, हदीस से जो समझा गया है, ये माना है वहाँ पे। तो जब मंतूक और मफ़हूम दोनों टकराएंगे तो मंतूक ही मुक़द्दम होगा। एक मुसलमान के यहाँ ईद उल फित्र की रात में बच्चे की विलादत हुई, क्या उसकी जानिब से सदक़तुल फित्र निकाला जाएगा? कहते हैं नमाज ईद से पहले जिस बच्चे की विलादत हो उसकी जानिब से सदक़तुल फित्र अदा करें, यही अहवत है, यानी ज्यादा एहतियात इसी में है कि उसको अदा कर दिया जाए। हदीस में है व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजि नासी इला सलात, मुत्तफ़क़ुन अलैह। नमाज ईद के लिए लोगों के निकलने से पहले उसके अदा करने का हुक्म दिया, और जब उस बच्चे की विलादत सदक़तुल फित्र के अदा करने के वक्त में हुई है तो उसकी जानिब से सदक़तुल फित्र अदा कर देना चाहिए। जनीन की जानिब से सदक़तुल फित्र नहीं। अगरचे बाज़ फ़ुक़हा इसके कायल हैं, मगर सही ये है कि जनीन यानी वो बच्चा जो पेट में अभी है, जनीन की जानिब से सदक़तुल फित्र नहीं है। हदीस में अस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन है, यानी हर छोटे बड़े मुसलमान का तज़किरा है जो वजूद में आ चुका है, जनीन का नहीं जो अभी पेट में है। यहाँ सवाल करते हैं कि एक शख्स का इंतकाल आखिरी रमज़ान को मगरिब के बाद हुआ, उसकी जानिब से सदक़तुल फित्र अदा करें या नहीं? कहते हैं कि इसकी जानिब से सदक़तुल फित्र अदा कर दें, यही ज़्यादा मुनासिब और अहवत है। इस वास्ते की हजरत इब्ने उमर की हदीस फरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फित्र मिन रमज़ान साअम मिन तमरिन, मुत्तफ़क़ुन अलैहि में लफ्ज़े ज़कातल फित्र से बहुत से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि सदक़तुल फित्र का वजूब आखिरी रमज़ान को सूरज गुरूब होने से हो जाता है। इस वास्ते कि यही रमज़ान के इफ्तार यानी उसके रोज़े के ख़त्म करने का वक्त है, और जब सदक़तुल फित्र वाजिब होने के बाद उसका इंतकाल हुआ
تو اس کی جانب سے صدقۃ الفطر نکال دینا ہی صحیح ہے۔ المغنی لابن قدامہ میں ہے وَمَن مَّاتَ بعد غروب الشمس لیلۃ الفطر فعلیہ صدقۃ الفطر، نص علیہ احمد، جو عید الفطر کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد انتقال کر جائے اس پر صدقۃ الفطر ہے۔ امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال 10 رمضان کو ہو گیا تو کیا ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے؟ جواب میں کہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالنے کا وجوب آخری رمضان کے سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اس واسطے جو اس دن سورج غروب ہونے سے قبل انتقال کر جائے اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں، اور یہ اس سے پہلے وفات پا گئے ہیں، اس واسطے ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ کسی خاص فقیر و محتاج شخص کے انتظار میں کیا صدقۃ الفطر کے نکالنے کو عید کے بعد کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص فقیر کے لیے عید کے بعد نکالیں، فطرہ عید کے بعد نکالیں، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے نکال دینا چاہیے، اور کسی خاص فقیر و محتاج کے انتظار میں تاخیر کرنا قطعاً درست نہیں، ورنہ وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ اگر وہ نماز عید سے پہلے نہیں پہنچ سکتا اور اس کا کوئی وکیل ہے تو اس وکیل کو دے دے اور اپنے پاس سے نکال دے۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا صدقۃ الفطر اس کا شوہر ادا کرے گا یا اس کی ذمہ دار بیوی ہے؟ بیوی کے نان نفقہ کا ذمہ دار چونکہ شوہر ہی ہے، اس واسطے اسے اپنی بیوی کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا، چھوٹے اور بڑے کی طرف سے، غلام اور آزاد کی طرف سے، جن کے کھانے خرچہ کے تم ذمہ دار ہو، اور اگر عورت اپنا صدقۃ الفطر خود نکال دیتی ہے تو بھی کافی ہوگا۔ یہاں کہتے ہیں کہ ایک شخص کی شادی ہوئی ہے مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور بیوی نابالغ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین ہی کے گھر ہے، کیا ایسی صورت میں بیوی کا صدقۃ الفطر اس کے شوہر کے ذمہ ہے یا اس کے باپ کے ذمہ ہے؟ کہتے ہیں ایسی صورت میں بیوی کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے، شوہر پر نہیں، کیونکہ شوہر پر ایسی صورتحال میں اس کا نان نفقہ واجب نہیں، اسی طرح اس پر اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نافرمانی کر کے اپنے والدین کے ہاں چلی گئی ہو تو اس کا صدقۃ الفطر بھی شوہر پر واجب نہیں۔ صدقۃ الفطر میں غلہ وغیرہ عمدہ اور صاف کر کے نکالنا چاہیے۔ گھن لگے ہوئے یا بھیگے ہوئے گیہوں وغیرہ کا صدقۃ الفطر دینا کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر میں ہمیشہ عمدہ اور اچھے قسم کا گیہوں اور جو وغیرہ دیں۔ المغنی لابن قدامہ میں ہے والافضل اخراج الاجود، قال احمد كان ابن سیرین يحب ان ينقي الطعام وهو احب الی لیکون علی الکمال۔ افضل خوب عمدہ قسم کا نکالنا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ابن سیرین پسند کرتے تھے
कि गेहूं वगैरह को चुनकर साफ कर लिया जाए, मेरे नजदीक भी यही ज्यादा पसंदीदा है, ताकि सदका कामिल तरीका पर हो। अगर घुन लगने या भीगने की वजह से गल्ला खराब हो गया या ज्यादा पुराना होने की वजह से मज़ा बदल गया, तो अल्लामा इब्न कुदामा कहते हैं कि इसका सदक़तुल फित्र में निकालना जायज़ नहीं है। उनकी इबारत है, और ये लंबी इबारत है, और उसका तर्जमा ये है, ऐसे गल्ले का निकालना जायज़ नहीं जो ऐबदार हो, जैसे कीड़ा लगा हुआ, भीगा हुआ, और ऐसा पुराना जिसका मज़ा बदल गया हो, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, खराब का कस्द ना करो कि उसी से खर्च करो। और अगर पुराना है मगर उसका मज़ा नहीं बदला है, सिर्फ नए की कीमत पुराने से ज़्यादा है, तो पुराना निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐब नहीं है। अल्लामा इब्न कुदामा ये भी कहते हैं कि अगर इसमें इतनी ज़्यादा आमेजिश है, मिलावट है, कि उसकी वजह से वो ऐबदार माना जाता है, तो उसका निकालना भी काफ़ी नहीं। और अगर कम आमेजिश है तो निकालना जायज़ है, मगर उसी के बकद्र ज़्यादा देना चाहिए, ताकि एक सा साफ सुथरा रह जाए। यानी जो आमेजिश है तो आमेजिश का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। अगर आधा सा आमेजिश है तो 1.5 सा निकालना चाहिए, कि आधा सा निकल जाएगा तो 1 सा खालिस रह जाएगा। कहते हैं कि एक शख्स के पास सदक़तुल फित्र अदा करने के लिए गेहूं या जौ है, या इतने रुपए हैं जिनसे वो सदक़तुल फित्र के लिए गेहूं खरीद सकता है, मगर वो मक़रूद है। ऐसी सूरत में वो पहले कर्ज अदा करे या सदक़तुल फित्र निकाले। कहते हैं अगर जिस शख्स का वो मक़रूज़ है वो बर वक्त कर्ज का मुतालबा नहीं कर रहा है, तो पहले सदक़तुल फित्र अदा करे और बाद में कर्ज, क्योंकि सदक़तुल फित्र का एक महदूद वक्त है, और ताख़ीर करने की सूरत में वो सदक़तुल फित्र ना होगा, बल्कि आम सदक़ात में से एक सदका होगा। जबकि कर्ज बाद में भी अदा कर सकता है। नीस फितरा की ताकीद ज्यादा है, क्योंकि वो हर मुसलमान पर फर्ज है, ख्वाह फकीर ही क्यों ना हो, जबकि वो एक दिन से ज्यादा के खाने का मालिक हो। और अगर कर्ज ख्वाह उससे बर वक्त कर्ज का मुतालबा कर रहा है, तो पहले कर्ज अदा कर दे, फिर अगर उसके पास उसके और उसके बाल बच्चों के लिए एक दिन के खाने से जायद हो तो सदक़तुल फित्र अदा करे, वरना सदक़तुल फित्र उस पर वाजिब नहीं। मुतालबा की वजह से कर्ज का बर वक्त अदा करना वाजिब हो जाता है, और कई वजूह से वो ज्यादा मुअक्कद होता है। ईद से पहले सदक़तुल फित्र का निकालना। यहाँ पूछा है कि सदक़तुल फित्र ईद से कुछ कबल निकाल सकते हैं। हाँ, उसे ईद से 1-2 रोज पहले भी निकाल सकते हैं। सहीहुल बुखारी में है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सदका 1-2 रोज पहले निकाल दिया करते थे। भूलने की वजह से सदक़तुल फित्र नमाज ईद के बाद निकालना, तो ऐसा भी किया जा सकता है। सदक़तुल फित्र का असल वक्त नमाज ईद से पहले है, मगर चूंकि उसने ऐसा भूल कर किया है, इस वास्ते उम्मीद है कि ये सदका अदा हो जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रुफ़िअ अन उम्मती अल ख़तउ व निस्यान व मस्तुक्रिहु अलैहि। मेरी उम्मत से भूल चूक और इकराह माफ है, यानी किसी से कोई जबरिया काम करवा लिया जाए तो वो उसका गुनाह माफ होगा। कहते हैं क्या सदक़तुल फित्र में मेवा जात भी दे सकते हैं? इसके जवाब में फरमाते हैं अहादीस में खजूर और किशमिश से सदक़तुल फित्र निकालने का सबूत है, बस इस तरह के मेवा जात सदक़तुल फित्र में दे सकते हैं।
मगर गेहूं वगैरह की कीमत का नहीं, बल्कि उनमें से एक सा का एतबार होगा। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और किशमिश और ज़बीब का एक सा ही सदक़तुल फित्र में निकालते थे। हमारे यहाँ उमूमन लोग बाजरे और जवार की रोटी खाते हैं, तो क्या सदक़तुल फित्र में उन्हें निकाल सकते हैं? इसके जवाब में कहते हैं, अगर आपके यहाँ आम लोग जवार और बाजरे की रोटी ही खाते हैं तो वहाँ उन्हें सदक़तुल फित्र में निकाला जा सकता है। उसके बाद में सवाल करते हैं, क्या उबला हुआ चावल जिसे सेला चावल और कहीं भुजिया चावल कहते हैं सदक़तुल फित्र में निकालना जायज़ है? इसके जवाब में कहते हैं, जहाँ के लोग आम तौर से सेला चावल ही खाते हो वहाँ उसका निकालना जायज़ है। सदक़तुल फित्र में क़ूतुल बलद का एतबार होगा। सदक़तुल फित्र की मुनासबत से चावल के साथ सेवइयाँ, शक्कर, तेल और कुछ ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू वगैरह दे दें तो क्या जायज़ है? कहते हैं कि ऐसे गल्ले जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल हैं दे तो बिलाशुबा सदक़तुल फित्र की अदायगी हो जाएगी। किशमिश जिसका तज़किरा हदीस में है उस पर क़ियास करके और ईदुल फित्र के दिन उमूमन सेवइयों के खाने का रिवाज होने की बिना पर उनके लवाजिमात के शामिल करने की गुंजाइश मालूम होती है। मगर गल्ला सदक़तुल फित्र में दे और ज़कात वगैरह की रकम से इन चीज़ों के लिए ताउन करें तो ज़्यादा बेहतर है। सदक़तुल फित्र में धान निकालने का हुक्म। सदक़तुल फित्र में धान के बजाय चावल निकालना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ मोमिनो अपनी पाकीज़ा और उम्दा कमाई में से खर्च करो। और बिलाशुबह धान और चावल में चावल ही उम्दा है, और इस वास्ते भी कि चावल के निकालने से यकीनी तौर पर सदक़तुल फित्र की अदायगी हो जाएगी और देने वाले बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, जबकि धान देने की सूरत में मामला मशकूक व मुश्तबा रहेगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, मशकूक चीज़ को छोड़कर गैर मशकूक को इस्तेमाल करो। और एक दूसरी हदीस में फरमाया, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुशब्बहात ला यअलमुहा कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ल मुशब्बहात इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही। सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 126। हलाल वाज़े है, हराम वादे है, दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा चीज़ें हैं जिसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और जिसने मुश्तबा चीज़ों से परहेज़ किया उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया। नीज़ इसमें फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए सहूलत और आसानी है, क्योंकि उसे फ़ौरन पकाकर खा सकते हैं, जबकि धान में ये सहूलत नहीं है। अगर धान से सदक़तुल फित्र निकाले तो इतना इजाफा करके निकाले कि उससे चावल यकीनी तौर से एक सा निकले। इसी के ठीक बाद सवाल नंबर 150 में यही बात पूछी गई है। इसमें भी डॉक्टर साहब ने यही फतवा दिया है। और धान के फित्रा के सिलसिले में एक ज़माने में काफ़ी बहस हुई है, तर्जमान से में भी इसका मज़मून आया है, और मुझे याद आ रहा है कि उसमें लोगों ने यही कहा था कि धान ना निकाला जाए, फित्रा में धान ना निकाला जाए। सदक़तुल फित्र में
नकद निकालने का हुक्म। सदक़तुल फित्र में पैसे निकालने का क्या हुक्म है? लोग सदक़तुल फित्र में धड़ाधड़ पैसे निकाल रहे हैं और गल्लों पर कोई तवज्जो नहीं देता है। जवाब में कहते हैं, अहादीस में खजूर, किशमिश, पनीर, जौ और ताम का तस्करा है, और ताम से मुराद गल्ला है जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेरी नज़र से कहीं भी अहादीस में दिरहमो दीनार सदक़तुल फित्र में देना नहीं गुजरा, जबकि अहद नबी में कीमत और दिरहमो दीनार उस वक्त मौजूद व मारूफ थे। तो अगर कीमत और पैसे बिला किसी इस्तिरार और मजबूरी के जायज होते तो अहादीस में इसका तस्करा जरूर होता। हदीस में इसका तस्करा न होने का मतलब है कि असल गल्ले और मज़कूरा अशिया का निकालना ही है। अलबत्ता किसी इस्तिरारी हालत और मजबूरी की सूरत में फत्तकुल्लाह मस्ततातुम की बिना पर निकाला जा सकता है, मगर गल्लों को छोड़कर आम तौर से पैसे निकालना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। सदक़तुल फित्र निकालने के वक्त आदमी जहां रहे वहीं निकाले या घर पर निकालना चाहिए, ये सवाल है। कहते हैं बेहतर है कि ईद उल फित्र के मौका पर आदमी जहां रहे वहीं पर सदक़तुल फित्र निकाले। रसूल अकरम ने फरमाया है, तू खज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, उनके अग़निया से लिया जाए और उन्हीं के फ़ुक़रा पर खर्च कर दिया जाए। लेकिन किसी बिना पर अगर उसके घर निकाल दिया गया तो भी इंशाअल्लाह उसकी अदायगी हो जाएगी। इसके बाद सवाल करते हैं कि एक शख्स की सास को उसके शौहर ने तलाक दे दी है, शौहर यानी उसके ससुर, और अब वो अपने दामाद और लड़की के पास रह रही है तो क्या ये दामाद अपने घर का सदक़तुल फित्र अपनी सास को दे सकता है? औलाद अपना सदका और ज़कात अपने वालिदैन और दादा दादी और नाना नानी को नहीं दे सकती है। इस एतबार से इस शख्स की बीवी और बच्चे अपना सदका अपनी माँ और नानी को नहीं दे सकते। रहा खुद दामाद के सदका का मसला, तो अगर उसने अपनी सास के इखराजात खाने पीने वगैरह की जिम्मेदारी ले रखी है तो ऐसी सूरत में उसे अपना सदका देना दुरुस्त नहीं। और अगर उसके नफका की जिम्मेदारी खुद नहीं ली है और सास गरीब व मिस्कीन है तो उसे सदका दे सकता है, वरना नहीं। वल्लाहु अलम। यहाँ सवाल है कि क्या हमारे घर जो नौकर चाकर और खादिमाएं काम करती है वो अपना सदक़तुल फित्र खुद देंगे या उनकी तरफ से हमें देना पड़ेगा? इसके जवाब में कहते हैं कि ये गुलाम और लौंडी नहीं है, बल्कि आपके यहाँ उजरत पर काम करते हैं। इस वास्ते उनकी तरफ से सदक़तुल फित्र अदा करना आप पर वाजिब नहीं है, बल्कि वो खुद अपना अपना सदक़तुल फित्र अदा करें। इल्ला ये कि उन्होंने तनख्वाह और उजरत में ये भी तय किया हो कि आप हमारे क़याम ताम और इतनी तनख्वाह के साथ हमारा सदक़तुल फित्र भी अदा करेंगे, और आपने उसे कबूल किया हो तो फिर आपको शर्त के मुताबिक उनकी तरफ से सदक़तुल फित्र अदा करना पड़ेगा, वरना नहीं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। इसके बाद में यहाँ सवाल है कि ऐसे गैर मुस्लिम जो जुज़ाम वगैरह जैसी बीमारी में मुब्तला हैं, जुज़ाम कोढ़ की बीमारी को कहते हैं, जिसकी बिना पर उन्हें लोग काम नहीं देते
اور وہ پریشان رہتے ہیں، تو کیا ایسے غیر مسلموں کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں سے دے سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر خاص مسلمانوں کے لیے ہیں، اور غیر مسلموں کو خواہ مزمن بیماری میں مبتلا ہوں ان میں سے دینا جائز نہیں۔ مزمن بیماری یعنی ایسی بیماری جو ہمیشہ لگی رہے گی اور وہ چھوٹے گی نہیں، یا عام طور سے ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی، اغلب یہی ہے۔ تو چونکہ وہ غیر مسلم ہے اس لیے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، تو ایسے مسلمان مالداروں سے لیا جائے گا، اسے مسلمانوں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دے دیا جائے گا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے توما للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو یہاں مسکین سے مراد مسلمان مسکین ہے، تاکہ عید کے دن انہیں مانگنے کے لیے ادھر ادھر چکر نہ لگانا پڑے۔ غیر مسلموں کی مدد کرنی ہو تو نفلی صدقات و عطیات سے کرنی چاہیے، اور چونکہ یہ پریشان حال ہے تو ان کے لیے دستے تعاون دراز کرنا چاہیے اور انہیں دینا چاہیے، لیکن اس میں سے نہیں۔ صدقۃ الفطر کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ یہاں پر بھی اسی طرح کا سوال ہے۔ صدقۃ الفطر غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ صرف مسلمان فقراء و مساکین کے لیے ہے، جیسا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، آج کے دن انہیں ادھر ادھر گردش کرنے اور چکر لگانے سے بے نیاز کر دو۔ اور توما للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں ہی کو دینا چاہیے اور غیر مسلمین کو نہیں دینا چاہیے۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر غیر مسلموں کو نہیں دینا چاہیے۔ صدقۃ الفطر واجبات و فرائض میں سے ہے، اور واجبات صدقہ کا کسی غیر مسلم کو دینا درست نہیں، اس کے مستحق صرف مسلمان فقراء و مساکین ہیں۔ یہاں ایک بات میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے اپنے علاقے میں، یعنی یو پی میں ضلع گونڈا، ضلع بلرام پور وغیرہ میں، کہ عید کے دن بہت بڑی تعداد میں ہندو آ جاتے ہیں۔ عام طور سے وہ بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، اور کبھی شبہ ہوتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، اور وہ فطرہ کر کے مانگتے ہیں اور لوگ اسی فطرے میں سے دیتے ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ روکتے ہیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پر پورے علاقے میں آتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے مقامات پر فطرہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، مسجد میں اکٹھا کر کے، اور اسے پھر مدرسے میں لگا دیا جاتا ہے بیچ کر کے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں مالدار بچے بھی ہوتے ہیں اور غریب بچے بھی ہوتے ہیں، تو مالدار اور غریب میں فرق کرنا چاہیے۔ فطرہ اور صدقہ میں فرق، فطرہ اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ ہمارے یہاں مغرب کے بعد صدقہ لیتے ہیں، اور جب عید کی نماز ادا کرنے جاؤ تو راستے میں فطرہ مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں صدقۃ الفطر کو بعض لوگ صرف صدقہ اور بعض لوگ صرف فطرہ کہتے ہیں، اور صدقہ نکالنا یا فطرہ نکالنا بولتے ہیں۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان کی طرف سے ایک سا نکالنا ہے، جس کا وقت عید سے چند روز قبل سے شروع ہو جاتا ہے اور نماز عید ہونے تک رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کو کئی لوگ الگ الگ جگہ وصول کرتے ہو اور آپ دونوں جگہ دے دیتے ہو اور اس کو دو چیز سمجھتے ہو، جبکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اور ہو سکتا ہے راستہ میں عام صدقہ مانگتے ہو جسے غلطی سے فطرہ کہتے ہو۔ واللہ عالم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔